اللہ جل مجدہ نے عالم ارواح میں ایک جلسہ منعقد کیا تھا، جس جلسے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری روحوں کو اکٹھا کیا تھا، اور وہاں پر اپنی ربوبیت اور اپنی الوہیت کا اقرار کرایا تھا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سارے کے سارے ارواح نے ایک زبان ہو کر کے کہا تھا قالوا بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا پروردگار، تو ہی تو ہمارا رب العالمین ہے۔ آپ دیکھیں عربی لینگویج میں جہاں پر ہاں کہنا ہوتا ہے وہاں پر نعم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جہاں پر ہاں میں تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے وہاں بلا کا استعمال ہوتا ہے۔ ساری ارواح اس میں ہم اور آپ موجود تھے، سب نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی مولا کریم بلا کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا پروردگار، تو ہی ہمارا رب العالمین ہے۔ ایک جلسہ عالم ارواح میں خالق کائنات نے منعقد کیا، اور صرف اپنی ربوبیت کا اظہار کرانے کے بعد وہ جلسہ ختم کر دیا۔ آج بات ہوتی ہے جلسہ کہاں سے لے کر کے آئے ہو۔ اس کے بعد عالم ارواح میں اللہ وحدہ لا شریک نے ایک دوسرا جلسہ منعقد کیا۔ پہلی بار جو جلسہ کیا تھا اس جلسے میں ساری روحوں کو آنے کی انومتی تھی، اس میں نیک و بد بھی تھے، یہود و نصارا بھی تھے، مسلم غیر مسلم بھی تھے، سارے لوگ تھے، گستاخ و فجار بھی تھے۔ لیکن دوسرا جلسہ جو پروردگار کی طرف سے ہونے جا رہا ہے اس میں سب کے سب آنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو آنے کا پرمیشن نہیں ہے، بلکہ خاص مقدس روحوں کو بلایا گیا ہے، خاص طور سے مقدس روحیں ہیں، پاکیزہ روحیں ہیں، ان روحوں کو بلایا گیا ہے، اور وہ روحیں انبیاء اور مرسلین کی ارواح طیبات ہے۔ خاص طور سے انبیاء اور مرسلین کو بلایا گیا اور ایک مقام پر اکٹھا کیا گیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے وہاں پر ان سے عہد و پیمان لیا، اے نبیوں کی جماعت، تم جب دنیا میں جاؤ گے اور ہمارا آخری نبی تشریف لائے گا تو تم لوگ پر ایمان لے آنا اور ان کی مدد کرنا۔ اللہ اکبر، سارے کے سارے انبیاء کرام نے اس بات کی گواہی دی اور اقرار بھی کیا، اے میرے پروردگار ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ جواب بھی ہو جاتے ہیں۔ میں یہ باتیں کوئی ہوائی میں نہیں بیان کر رہا ہوں بلکہ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے نبیوں کی جماعت، اے میرے لوگوں، یاد کرو جبکہ اللہ نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا، یہ عہد لیا تھا کہ تم دنیا میں جاؤ گے کتاب و حکمت کے ساتھ دنیا میں تشریف لے جاؤ گے، اور تمہارے درمیان ہمارا آخری پیغمبر تشریف لائے گا تو تم لوگ ان کی مدد کرنا، ان کی نصرت کرنا، ان کی رعایت کرنا، ان کی ہدایت کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ ان پر ایمان بھی لے آنا۔ اللہ اکبر، کتنی سمپل سی بات ہے جو ہم اور آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کو آخر کیا ضرورت تھی نبیوں کی جماعت کو اکٹھا کرنے کی اور وہاں پر میلاد مصطفیٰ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، اے لوگوں سنو ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، صبح صادق کا وقت تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کی سرزمین پر حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت آمنہ بنت وہب کے بطن پاک سے اسحاق دانے گنتی پر تشریف فرما ہو رہے تھے۔ ہم بھی تو وانے کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم بھی تو وانے کی بات کرتے ہیں، ہم بھی تو وانے پر مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں جس پر ہم پر فتوے لگائے جاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں نہیں لکھا ہے، حدیث پاک میں نہیں لکھا ہے، صحابہ نے نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر، ان سوال کرنے والوں کو ذرا پہچان لیجئے، یہ سوالات کتنے اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں صدیق اکبر کے دور میں اتنی مرتبہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا، صدیق اکبر نے نہیں منایا ہے، فاروق اعظم کے دور میں آیا ہے، فاروق اعظم نے نہیں منایا ہے، عثمان غنی کے دور میں آیا ہے، انہوں نے میلاد مصطفیٰ منعقد نہیں کیا ہے، مولا ہدایات کے دور میں آیا ہے، لیکن کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اے سن لو، اے بڑے لوگوں، تم نے میلاد کہاں سے نکال لیا؟ اے نادانو، ہم نے یہاں سے نہیں لیا ہے، ہم نے خالق کائنات سے لیا ہے۔ اے نبیوں کی جماعت کو عالم ارواح میں روحوں کی دنیا میں وہاں اکٹھا کر کے آمد
किताबें हुआ पुराने नबी होगा। याद रखो आज हमें ये कहने का हक पहुंचता है खुदा है जाकिर मेरे नबी का, कभी न ये जिक्र खत्म होगा। अज़ल से मेरे नबी की महफिल सजी हुई है, सजी रही। बात क्लियर हो गई ना? अब इनको बता दीजिएगा अब ये रुकने वाला नहीं है। एतराज करने वाले 100, 200, 400 साल से पैदा हुए हैं। ये महफिल आज की नहीं है, ये आलम अरवाह में खालिक कायनात से मुनक़्क़िद की गई। और हम जो कर रहे हैं वो सुन्नत इलाहिया है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत। अब आप आगे बढ़े। ज़िक्र मिलादे मुस्तफा हमारे यहाँ का जो तरीका है, हमने अपने अंदाज में जो हमसे बन पड़ता है, झंडियाँ लगाते हैं, फोटो में लगाते हैं, लाइटें लगाते हैं, अपने इर्द गिर्द के उलमाए किराम को इकट्ठा करते हैं, कुछ नूरानी बयानात हो जाते हैं, कुछ सीरत तय्यबा के हवाले से गुफ्तगू होती है, कुछ नाते पाक पेश किए जाते हैं, हम सुनते हैं, महसूस होते हैं और हमारा मिलाद मुस्तफा वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन मेरे भाइयों, ये हमारी औलाद की जिम्मेदारी है, हम मिलाद मुस्तफा मनाए, हर दिन मनाए, नबी क़यामत का तज़किरा करे। आमद मुस्तफा मनाना बेशक बाइसे बरकत है, बरकत का सबब है, लेकिन याद रखे मेरे भाइयों, सिर्फ और सिर्फ मिलाद मुस्तफा मनाने से हमारा काम चलने वाला नहीं। हमारे उलमा ने तो लिखा है जहां मिलाद मुस्तफा होता है वहां से अल्लाह ताला बलाओं को दफा फरमा देता है। मिलाद मुस्तफा की महफिल में जो दुआएं की जाती है वो दुआएं भी कबूल हो जाती है। ये बात कहाँ लिखी है पता है? ये बात उलमा ने उन जुमलों के दरमियान लिखा है जहाँ पर उलमा बयान करते हैं अल्लाह ने कुछ ऐसे खास वक्त रखे हैं जिन वक्तों में दुआ की जाए तो वो दुआएं कबूल हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर जुमा के दिन एक वक्त ऐसा आता है अगर उस वक्त में दुआ कर ली जाए तो वो दुआ कबूल हो जाती है। शबे बारात की रात में जो दुआ की जाए वो दुआएं कबूल हो जाती है। शबे कद्र में जो दुआएं की जाए वो दुआएं कबूल हो जाती है। मैदान अरफात में जो दुआएं की जाए वो दुआएं कबूल हो जाती है। ऐसे ही बारिश नाज़िल होने के वक्त जो दुआएं की जाए वो दुआएं कबूल हो जाती है। उलमा बयान करते हैं जब महफिल मिलाद मुस्तफा में बैठे तो दुआएं भी कर लिया करो, क्योंकि इस महफिल में जो दुआ होती है वो दुआ भी कबूल हो जाती है। महफिल बाइसे बरकत है और कबूलियत दुआ का जरिया भी है। कितनी पाक महफिल में हम और आप आज तशरीफ फरमा है, हाजिर है। अल्लाह वादम राशिदी करते हैं। हमने शुरुआत भी यही से की थी कि हमारे नसीब में लिखा है और अल्लाह का बेहद एहसान है कि हम लोग यहाँ पर हाजिर आए। मिलाद मुस्तफा के मौके पर हमारे उलमा बहुत सारे बयानात करते रहते हैं। मैं आपके सामने पहली बार आया हूँ, मैं अपनी कुछ बातें रखूंगा, आप उन्हीं बातों को गौर से सुन लीजिएगा, हमारा आना वसूल हो जाएगा। सबसे पहली चीज मैंने एक बात शुरू में ये कही थी, दुनिया अपने आप को बराबर तब्दील कर रही है। अगर हम लोग तब्दीली पैदा नहीं करते तो हम लोग तकियानुसी ख्याल में शुमार की जाएंगे। और इस्लाम ऐसा मजहब नहीं है जो दुनिया के साथ शाना बशाना चल न सकता हो। ये वो नादान लोग हैं जो इस्लाम पर इल्जाम लगाते हैं इस्लाम पुराने ख्यालात का मजहब है, इस्लाम तकियानुसी ख्याल का मजहब है, इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब है, उसके नियम और कवानीन पुराने हो चुके हैं, उनमें तब्दीली लाने की जरूरत है। उन्हें आप ये जवाब दे दीजिएगा, इस्लाम ने जो नियम बनाए, जो कवानीन बनाए, वो कयामत तक के लिए बेशक बनाए, लेकिन वक्त हालात की तब्दीली के एतबार से इस्लाम के नियम और कवानीन में तब्दील और बदलाव हो सकता है। मैं यहाँ नियम और कानून बदलने नहीं आया, मेरी हैसियत और औकात भी नहीं है कि मैं इस्लाम के कानून और नियम में तब्दीली कर दूँ। मैं बात सिर्फ तब्दीली की कर रहा हूँ। हमें अपने आप को तब्दीली कैसा पैदा करना है, तब्दील कैसे करना है। मिसाल के तौर पर जब रबीउल शरीफ का महीना आता है, हमारे गयार में जो माहौल है, हम लोग लाइटें लगाएं, कुप्पे में लगाएं, झंडियाँ लगाएं, रोशनियाँ करें और कुछ दिनों के बाद मिलाद मुस्तफा मनाएं। उसके बाद हमारा मिलाद मुस्तफा का मौसम खत्म हो जाता है। अब हमें और आपको ये देखना है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ यही तक थी। हमारे उलमा ने हमसे बयान किया कि ये महीना किसी एतबार से रमजान शरीफ से ज्यादा बरकत वाला महीना है, रमजान शरीफ से ज्यादा फजीलत वाला। वजह बताई, वजह ये बताई कि रमजान शरीफ में कुरान नाज़िल
नाजिल हुआ इसलिए बरकत वाला है, लेकिन इस महीने में साहिब कुरान नाजिल हुआ है इसलिए ज्यादा बरकत वाला है। जब ये महीना आता है, जब रमजान आता है, तो हम लोग अपने अंदर कुछ तब्दीली पैदा कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर जो साल भर नमाज नहीं पढ़ते हैं, जब रमजान आता है तो वे भी नमाजी हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई हंसी और मुस्कुराहट की बात नहीं है। अगर साल भर नहीं पढ़ता है, रमजान आने के बाद रमजान में शुरू कर देता है, फिर भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि रमजान में नमाजों का सवाब भी बरकत भी मिलता है, और बंदा जितनी देर अल्लाह की तस्बीह बयान कर ले उतना ही अच्छा है। कभी किसी मुसलमान का इस बात पर मजाक न उड़ाए कि 4 दिन का नमाजी है, रमजान में मस्जिद में नजर आ रहा है, उसके बाद भाग जाएगा। हो सकता है कि आज की बातें सुन करके वो अगले दिन नमाज पढ़ना छोड़ दे और उसके नमाज छोड़ने का सारा व्यवहार आपके साथ है। इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ, जब रमजान आता है हम लोग कुछ तब्दीली पैदा कर लेते हैं। अगर हम ये मानते हैं कि रमजान करीम से ज्यादा फजीलत वाला महीना रबीउल अव्वल शरीफ का है, तो रबीउल अव्वल शरीफ जब आए तो तब्दीली हमारे अंदर कुछ और भी होगी। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, आप दोशंबा के दिन, पीर के दिन रोजा रखते हैं, इसकी वजह क्या है? आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इसी दिन मैं पैदा हुआ था और इसीलिए मैं इस दिन रोजा रखता हूं। अब हम और आप अगर अपने नबी का महबूब उम्मती बनना चाहे तो सबसे पहले हम पर जरूरी होगा कि नबी की बताई हुई हर बात पर चलने की कोशिश करना शुरू कर दें। जब रबीउल अव्वल शरीफ आए तो हमें कोशिश करनी चाहिए रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में जितना ज्यादा हो सके हर दिन हम रोजा रख करके गुजारें। क्या नहीं हो सकता है? अगर ज्यादा लग रहा है तो कम से कम जितने दोशंबा, जितने सोमवार है इस महीने में, उस सोमवार को जरूर रोजा रख करके गुजारेंगे। जब जाकर के तब्दीली पैदा होगी हमारे अंदर। जो हम करते आ रहे हैं वो गलत नहीं है, जो हम कर रहे हैं वो सही है, लेकिन अपने अंदर बदलाव और तब्दीली की भी कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये हमारी होनी चाहिए, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, खास तौर से हमें दुरूद पाक की कसरत ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। दुरूद पाक तो हम पढ़ते रहते हैं, हमको जब वक्त मिलता है या जब हमने अपना वक्त बना रखा है पढ़ते हैं, लेकिन इस महीने में साहिब कुरान तशरीफ लाए जिन पर हम दुरूद पाक पेश करते हैं, जब वो महीना हमारे दरमियान आ जाए तो हमें चाहिए दुरूद पाक की कसरत करना शुरू कर दे, ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक हम पढ़ना शुरू कर दे। और क्या हो सकता है तब्दीली? हमारे एक बड़े आलिम बयान करते हैं, उनका अक्सर जो दौरा होता है वो यूरोप में होता है। यूरोप में है और भी मुल्क है, बर्मिंघम, हरारे, बॉम्बे, मॉरिशस, तमाम जगहों पर वो दौरा करते हैं। उन्होंने बयान किया, ये अलग बात है कि हमने यूरोप को बहुत कुछ गलत समझ रखा है, ये सच है। यूरोप का नाम आते ही हमारे जहनो दिमाग में आता है यूरोप तो एक अय्याशी का अड्डा है, बड़ा माहौल है, बड़ा खतरनाक जगह, बड़ी खतरनाक जगह है। लेकिन आप बयान करते हैं कि वहाँ के जो लोग, जो बाशिंदे हैं, बेशक वहाँ के रहने वाले बहुत ज्यादा अय्याशी करने वाले हैं, लेकिन याद रखें वहाँ के बाशिंदों में ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो अपने आप को तेजी के साथ तब्दील करते नजर आएंगे। मिसाल के तौर पर आपने रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में कुछ बातें बयान फरमाई, कैसा वहाँ पर लोग मनाते हैं, जरा हमें और आपको नोट करने की जरूरत है। हम और आप क्या करते हैं, हमारे यहाँ रबीउल अव्वल के दिन डीजे होता है, उसमें साउंड होता है और हमारी कैसेटें होती हैं, उसमें नाच पढ़ते हैं, उसी की आवाज पर हम पीछे पीछे चलते हैं, जो उसमें बोला जाता है उसी की आवाज में हम आवाज मिला करके उसके पीछे पीछे चलते हैं और हमारा वक्त पूरा होता है, हमारा जुलूस भी खत्म हो जाता है। आप वहाँ देखेंगे, आप लिखते हैं कि जैसे जब वहाँ पर जुलूस निकलता है, जुलूस निकलने से पहले वहाँ के बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब लोग तकरीबन 15-20 दिन पहले से वहाँ पर अपने उलमा के पास जाकर के ट्रेनिंग लेंगे कि हमें जुलूस के दिन कैसे क्या पढ़ना है, क्या करना है। अच्छा, हमारे यहाँ तो उलमा से ट्रेनिंग लेने का रिवाज ही नहीं है, मसला पूछने का रिवाज खत्म हो चुका है, बहुत सारे मसाइल तो हम खुद ही हल कर लेते हैं। अफसोस इस दौर में, इस दौर के मुसलमानों पर बीमार हो गए वो डॉक्टर के पास जाएंगे, जरूरत पड़ेगी इंजीनियर के पास जाएंगे, हर मामले के जानकार के पास जाएंगे, लेकिन जब दीनी मामला आता है तो दीनी मामले के जानकार के पास जाने में शर्म आती है या एक घटिया से ख्याल करके उन्हें पीछे छोड़ देते हैं।
वो अपने उलमा से गाइड करते हैं कैसे करना है। उलमा उन्हें अच्छे खासे अंदाज में सलातो सलाम याद कराते हैं। जुलूसे मुस्तफ़ा में सब लोग हाजिर हो गए तो सलातो सलाम याद करके आना, और एक खास तौर से एक खास ड्रेस में, मिसाल के तौर पर सफेद लिबास पहन के आना। सर पर क्या होगा उसका भी एक ड्रेस बनाते हैं, ये इस कलर का मामा शरीफ बांध करके आप लोग आना, और सब लोग इतने इतने तराने, इतने इतने नस्लें, इतने इतने सलातो सलाम याद करके आएंगे, और किसी डीजे की जरूरत नहीं है, बल्कि शांति पूर्वक जुलूस निकलेगा। जो लोग सस्ता होंगे, जो लोग लाइनों में होंगे, बच्चे बूढ़े जवान सब होंगे, सब लोग सलातो सलाम पढ़ते हुए जुलूस से पाठ में शिरकत करेंगे और चलते हैं। कितना प्यारा अंदाज होगा। अच्छा, मैं ये बात नहीं सीख रहा हूँ कि मैं बहुत अनोखी चीज पा गया हूँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ आज के इस हिंदुस्तान में नफरत भरे माहौल में हमें तो ये दिखाना रहता है, ऐ लोगों सुनो, आज के दिन अमन और राष्ट्री के सबसे बड़े पैगाम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। हम यही बताने सड़कों पर आते हैं ना, और किसी भी आते हैं। दुनिया देख ले, दुनिया जान ले, आज हम जिसके फॉलोअर हैं, हमारे आइडियल प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज इस खानदाने की पर तशरीफ फरमा हुए थे। उनका एक विचार, उनका एक ख्याल, उनका एक किरदार हम लोग सड़कों पर दिखाने को तैयार नहीं हो रहे। हम क्या मैसेज देंगे लोगों को? फिर हम क्या बता सकते हैं हम कौन है, किसके फॉलोअर हैं? एक वो दौर था कि उनके गुलाम को देख कर लोग कलमा पढ़ लिया करते थे, आज उनके गुलामों को देख कर लोग इस्लाम से मुनहरिफ हुए। कोई मुफक्किर, कोई जर्नलिस्ट में पढ़ा लिखा आज लिखता है इस्लाम तो किताबों में रह गया है, इस्लाम किताबों के अंदर रह गया है, जो इस्लाम के फॉलोअर है ये लोग इनको देख करके इस्लाम की पैरवी नहीं हो सकती। ये हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं? हम लोग चाहे तब्दीली पैदा कर सकते हैं, हम चाहे जुलूस की शक्ल में ऐसे अंदाज में हम अपने आप को पेश कर सकते हैं कि अपने गैर मुस्लिम भाइयों की निगाह में भी हम मौजूद हो सकते हैं, उनको प्रभावित कर सकते हैं, मुतासिर कर सकते हैं। और क्या बयान किया उन्होंने? जब उनका जुलूस निकलता है तो उनकी जो कमेटी होती है, तंजीम होती है, वो एक गिफ्ट पैक तैयार करते हैं। एक किस्म का गिफ्ट पैक होता है और कई एक डब्बे होते हैं, कई एक गिफ्ट पैक होते हैं। उसके अंदर क्या चीजें होती हैं? कुछ खाने पीने की चीजें, बच्चों के लिए चॉकलेट, टॉफियाँ, कुछ मिठाइयाँ और कुछ जरूरी सामान, और सबसे बड़ी चीज उसके अंदर कुछ पंपलेट, कुछ किताब छोटे टाइप के, इंग्लिश में, डच में, फ्रेंच में, अलग अलग लैंग्वेज में, जो वहाँ के मानने वाले जानने वाले हैं उनके लैंग्वेज में सीरत मुस्तफ़ा, तारीख मुस्तफ़ा पर छोटी छोटी किताबों में, अलग अलग जबानों में वो किताबें भी उसके अंदर डाले रहते हैं। जब जुलूस निकलता है तो कमेटी के कुछ लोग गैर मुस्लिम भाइयों से मुसाफा करके वो गिफ्ट पैक भी उन्हें पेश करते हैं और मुबारकबाद देते हैं कि आज के दिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे, हम लोग उनके फॉलोअर हैं, हम उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उन्होंने पूरी कायनात को उखुवत मोहब्बत का दर्ज दिया है, पूरी दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ाया है, हम लोग उनके मानने वाले हैं। आज हम लोग भी तुम्हें कुछ चीजें पेश कर रहे हैं, इसे देखना, इसे पढ़ना और कुछ चीजें हमारे नजर को पाता है। अब हम और आप ये सोचते क्या हमारे यहाँ ये सब चीजें नहीं हो सकती है? हो सकती है, लेकिन ये होगा कैसे? जब हम अपने उलमा से राय लेना शुरू कर देंगे, उलमा को आगे करेंगे। हमारे यहाँ तो क़यादत, रहनुमाई ही खत्म हो चुकी है। मुसलमान है तो 1.5 ईंट की मस्जिद अलग से बनाएगा, अपने दरवाजे पर खुद बनाएगा, खुद ही नमाज पढ़ेगा, किसी के पीछे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं होगा। वो मुसलमान कहाँ चले गए जो इत्तेहाद और इत्तेफाक का दावा करते थे? और ऐसी मिल्लत थी, ऐसा इत्तेहाद था, अगर दुनिया के किसी कोने में एक मुसलमान को हल्की सी तकलीफ हो जाए, दूसरे दुनिया के कोने का मुसलमान लौट जाता था। आज माहौल ये हो चुका है, बगल में पड़ोसी हमारा भाई सख्त परेशान हाल है, लेकिन हमारे सर पर जो रहती है, हमारे दिल में जरा बराबर, हमारा कलेजा जरा बराबर नहीं पसीजता है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी गैरत को, अपनी गैरत का जनाजा निकाल दिया। अब बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार की चल रही है, एक चीज और आप सुनो। जब ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे इरशाद फरमाया, दीनुन नसीहा, दीन खैरख्वाही का नाम है, दीन भलाई का नाम है, दीन का नाम आपने भलाई रख दिया। सहाबा के नाम ने या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, लिमन, किसके लिए? किसके लिए भलाई है? दीन भलाई है, दीन, लेकिन आप ये फरमा रहे किसके लिए, कैसे करना है इसमें? आप
इरशाद फरमाया बिल्लाहि व किताबिही व रसूलिही व अइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिही, पूरी दुनिया को आपने घेर लिया। सबसे पहले आपने कहा अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए और उसकी किताब के लिए, और सुनो मुस्लिम रहनुमाओं के लिए। यहाँ पर मुस्लिम उलमा नहीं कहा गया, बोली अइम्मतिल मुस्लिमीन, जो मुसलमानों के अइम्मा है, जो मुसलमानों के इमाम है। इमाम वही नहीं होता है जो मस्जिद में आकर के फज्र के वक्त 2 रकात नमाज पढ़ाता है। इमाम वही नहीं होता है। इमाम हर वो शख्स हो सकता है जो मुसलमानों की सच्ची रहनुमाई और क़यादत कर सके, मुसलमानों का इमाम है। हमने अपने क़यादत, हमने अपने कायदीन, अपने लीडर, अपने इमाम, अपने रईस, अपने बड़ों को भी, अपने बड़ों के पीछे चलना भी छोड़ दो। हमसे गवाह नहीं होता, हमसे देखा नहीं जाता कौन आगे जा रहा है, हम किसी के पीछे चलने को तैयार नहीं है। आका करीम के साथ बातें भलाई है अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए। अब यहाँ थोड़ा सा मतलब उसमें लिखे, भलाई अल्लाह के लिए कैसे हो सकती है? जाहिर है इसका मतलब ये है अल्लाह ने जो हुक्म दिया है, नमाज़ें पढ़ो, रोजे रखो, जो भी अहकामात हैं उस पर अमल करो, इसी का नाम अल्लाह के लिए भलाई है। बंदा अल्लाह के लिए भलाई कर क्या सकता है? उसकी औकात क्या है कि परवरदिगार के लिए भलाई करेगा? हाँ, भलाई से मुराद ये है कि जो उसके अहकामात उस पर अमल करे, बोले रसूल ही और उसके रसूल के लिए। यहाँ भी वही मतलब है, जो रसूलुल्लाह के अहकामात है उस पर अमल करे, इसी का नाम भलाई है। बोले किताब ही और उसकी किताब की भलाई, जो किताबुल्लाह के अहकाम है उस पर अमल करे, भलाई है। अब वही अइम्मतुल मुस्लिमीन के पॉइंट है, मुसलमानों के जो अइम्मा है, जो उनके लीडर है, जो उनके ज़ोमा है, उनके लिए भलाई है। उनके साथ भलाई कैसे हो सकती है? ये मेरे भाइयों, उनके साथ भलाई ऐसे हो सकती है जो मुसलमानों की क़यादत कर रहे हैं, सही मानों में मुसलमानों के इमाम है, उनके साथ बेहतरीन सलूक पेश किया जाए, उनको जो उनका मनसब है उन्हें दिया जाए, उनका जो ओहदा है उन्हें दिया जाए, उनकी इज्जत की जाए, उनको पेश रखा जाए, वक्तन फवक्तन उनसे गाइडेंस ली जाए और उनकी रहनुमाई हासिल की जाए। ये अल्लाह के रसूल का फरमान। अब सबसे आखिरी जो वर्ड है हदीस पाक का, वो आम्मतिहिम, और सारे लोगों के लिए भलाई है। दीन भलाई का नाम है। इसमें जब पूछा गया कि भलाई के भलाई नाम कैसे है, तो आपने अल्लाह और उसके रसूल और किताब और मुसलमानों के इमाम के साथ सारे लोगों की भलाई का भी जिक्र कर दिया। अब सारे लोगों के साथ भलाई कैसे करना है, ये इतनी बारीक और मुश्किल बात नहीं कि हम और आप उसको नहीं जानते। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ भलाई कैसे करेगा, ये तो हम सभी जानते हैं। तो अगर हम और आप चाहते हैं अल्लाह के रसूल के महबूब उम्मती बन जाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात है कि मुसलमानों पर बड़े मेहरबान हैं। एक आयत करीमा कुरान पाक की है, इसी मौजू पर उलमाए किराम बयान भी करते हैं। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तहकीक की वो रसूल तुम्हारे दरमियान तशरीफ लाए, मिलाद मुस्तफा के मतलब बयान करते हैं, जो तुम्ही में से है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, वो तुम्हारा बड़ा भला चाहने वाले हैं। तुम्हारा मशक्कत में पड़ना उन पर गिरा गुजरता है, परेशान तुम होते हो। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान होता है। अल्लाह बोल रहा है कुरान पाक की आयत में, अल्लाह कह रहा है अलैहि मा अनित्तुम हरीस, और जब तुम परेशान होते हो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान हो जाते हैं। हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारा बहुत ज्यादा भला चाहने वाले, तुम्हारे खैरख्वाह रसूल कायनात है। रसूल कायनात हमारी खैरख्वाही फरमाते हैं। आज के दिन में भी हमें तकलीफ होती है, कुरान पाक की आयत करीमा के मुताबिक रसूल पाक को भी तकलीफ होती है। मेरे भाइयों, हमारे दिल में ये नहीं आता है हम रसूल पाक के महबूब उम्मती बन जाए, हम रसूल पाक के सच्चे उम्मती बन जाए। तो याद रखो रसूल पाक की एक सिफत ये भी है, जब किसी को तकलीफ पहुंचती है तो रसूल पाक को भी तकलीफ पहुंचती है। अरे वो कैसा गुलामे मुस्तफा है कि अपने भाई की तकलीफ में खुद आसूदा हाल रहे और खामोशी के साथ सोया रहे, अपने भाई की खबरगिरी नहीं। बात समझ गया? अगर हमें और आपको उम्मती बनना है, महबूब उम्मती, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफतें हैं, जो खासियतें हैं, उसको उस पर भी अमल करना होगा। दीन भलाई का नाम है, तो हमें और आपको एक दूसरे की भलाई पर करना है। तो मैं अब ये कर रहा था कैसे तब्दीली आ सकती है हमारे रसूलों को मनाने के तरीके में। 2-3 चीजें हमने बयान किया। और क्या हो सकता है? जहाँ तक बांटने का मसला है, बांटने के लिए हम लोग चंदा करते हैं। हमारा चंदा जो भी होता है वो हमारी डाइटों में चला जाता है, हमारे प्रोग्राम में चला जाता है।
ये प्रोग्राम, ये लाइटें मुश्किलों के लिए होती हैं, और मैं ये नहीं कह सकता कि ये लाइटें जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, और ये गलत है भी, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता कि वो गलत कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, क्योंकि वो खुशी के नाम पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मना रहे हैं। उनका जो अंदाज है, जो तरीका है, वो गलत नहीं, सही है। वो अपने अंदाज में लाइटें कर रहे हैं, रोशनियां कर रहे हैं, सही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये चंद दिनों के बाद खत्म हो जाएगी। हम क्यों ना ऐसा काम करें, ये भी करें, जो करते हैं वो भी करें, साथ ही साथ ऐसे काम भी करें, हर रबीउल अव्वल से कुछ नए काम की शुरुआत कर दें, कुछ नए काम की बुनियाद डाल दें, जो हमेशा हमेशा के लिए शुरू हो जाए, फिर कभी खत्म होने वाला है। तो क्या हो सकता है, जो हम चंदा करते हैं माह रबीउल अव्वल शरीफ में, हम वो चंदा गरीबों की भलाई के नाम पर भी कर सकते हैं। एक तो लाइटों के लिए भी करेंगे, साथ ही साथ उसी दिन से हम बुनियाद डाल सकते हैं। आज के दिन से रिफाही काम भी इसी रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में, इसी तारीख से हमारा एक ट्रस्ट या हमारा एक इदारा तैयार हो रहा है। आज से यहाँ पर एक फंड तैयार होगा, जो चंदा आज हो रहा है ये इकट्ठा होगा, साथ ही साथ हर महीने हम लोग एक फंड तैयार करेंगे, और आज के बाद से यहाँ पे हम गरीबों की मदद भी किया करेंगे। उसमें क्या हो सकता है, अपने भाइयों की खबरगिरी, जो मुस्लिम बच्चियां गरीबी की वजह से शादियां नहीं कर पा रही हैं, उनकी खबरगिरी हो सकती है। इसी रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में ये काम शुरू हो सकता है। हम दुनिया को पैसे देना चाहते हैं, आसानी के साथ ये पैसे दे सकते हैं। जो भूखे हैं उन्हें खाना खिलाने का नाम इसी रबीउल अव्वल, खाना खिलाने का काम इसी रबीउल अव्वल शरीफ के महीने से आगाज कर सकते हैं। जो लोग जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जो कपड़े के मोहताज हैं, उन्हें कपड़ा पहनाने का काम इसी रबीउल अव्वल शरीफ के महीने से हम शुरू कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, सीरत रसूल नबी के हवाले से, तारीख मुस्तफा के हवाले से, अपने बच्चों के दरमियान जो बच्चे स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते हैं, वहाँ पर हम जाए और अपने बच्चों में कुछ किताबचे तकसीम कर दे, कुछ पंपलेट तकसीम कर दे, और उनसे कह दे, बच्चों तैयारियां करो, हम रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर इनामात लेकर के हाजिर होंगे, और जो बच्चा जितनी तैयारी किए रहेगा उसका टेस्ट होगा, जो बच्चा जितना अच्छा नंबर लाएगा उतना अच्छा इनाम उसे पेश किया जाएगा। आसानी के साथ सीरत मुस्तफा हमारे कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों तक आसानी के साथ पहुंचना शुरू हो जाएगा। ये जिम्मेदारियां भी हमारी बनती है। हमने अपने बच्चों को कॉन्वेंट के हवाले कर दिया है, स्कूलों में छोड़ दिया है। वो जैसा अकीदा चाहे उन्हें सिखा दे, वो जैसा मजहब चाहे उन्हें सिखा दे, वो जैसा उनका जहन साजी करना चाहे कर दे, हमें परवाह नहीं होती है। हमें परवाह तब होनी चाहिए कि हमारा बच्चा मानव हो जाता है, आजाद ख्याल का हो जाता है, माँ बाप के हुकूक को पामाल करने लगता है, दुनियावी जिंदगी में इस तरह मस्त हो जाता है, उसे दीन की कोई खबर नहीं रहती है। हमें तकलीफ तो तब भी होनी चाहिए। ये काम भी हमारी जिम्मेदारी पर ही है और हमें ही करना है। हम चाहे तो आसानी के साथ सीरत मुस्तफा के नाम पर ये किताबचे, ये पंपलेट हम शाये कर सकते हैं, बढ़वा भी सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, चांद दिखने की तारीख से लेकर के 12 दिन तक कम से कम अपनी मस्जिदों में अपने इमामों से ये कह करके, अपने उलमा से कह करके बयान शुरू होंगे, और पाबंदी के साथ पूरे 12 दिन इशा बाद हम लोग मस्जिद में बैठ करके सीरत मुस्तफा के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और उसे सुनेंगे, समझेंगे, जो कि सीरत नबवी ऐसे ऐसे पहलू हैं, ऐसी ऐसी जिहतें हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं। अगर हम नस्ल नौ तक पहुंचाने में कामयाब हो गए, यकीनन हमारा मुआशरा आसानी के साथ इस्लामी मुआशरे में तब्दील हो गया। और ये सारी जिम्मेदारियां हमारी हैं। हम ये सोचते हैं कि ये काम कोई आसमान से उतर के आएगा करेगा, हमें तो अपनी राह चलनी है। मेरे भाइयों, ऐसे तब्दीली नहीं आ सकती है। जो कौम अपने आप को बदलना नहीं चाहती है, जो अपनी तब्दीली का ख्याल नहीं करती है, अल्लाह ताला भी उस कौम की तब्दीली की तरफ परवाह नहीं करता है। कुरान पाक में अल्लाह वहदहू ला शरीक ने साफ इरशाद फरमाया है, ला युग़य्यिरुल्लाहु बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम की हालत को तब्दील नहीं करता है जो कौम खुद अपने बदलने का ख्याल नहीं करती है। इकबाल ने इसी मौके पर कहा था, नहीं ख्याल इससे खुद बदलने का, खुदा भी उस कौम की हालत की तब्दील नहीं करता है, नहीं ख्याल इससे खुद अपने बदलने का। और इकबाल ने ये शेर अपने जहन से नहीं कहा है, बल्कि कुरान पाक की आयत का तर्जुमा किया है, क्योंकि हुक्मुल हाकिमीन ने पहले ही इरशाद फरमा दिया था, जो कौम खुद अपनी
تبدیلی کی بات نہیں کرتی ہے, اپنے تبدیلی کی طرف ذہن سازی نہیں کرتی ہے, وہ قوم آسانی کے ساتھ تبدیل نہیں ہو سکتی ہے. آج ہم ہندوستان کا ماحول لے کے یا پوری دنیا کا ماحول لے کے آسانی کے ساتھ ہمارے مقدس مذہب اسلام پر حملہ ہوتا ہے. کسی کنٹری کسی ملک سے یہ سننے میں آتا ہے آج وہاں قرآن پاک سنا دیا گیا. ہندوستان میں بیٹھے ایسے لوگ ہیں جو پیغمبر اسلام کے خلاف معاذ اللہ بکواسیں کیا کرتے ہیں. اللہ اکبر, کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم نے دیگر مذاہب کو نہیں پڑھا ہے, ہم دیگر قوم دیگر مذاہب کو پڑھنا بھی نہیں چاہتے ہیں اور نہ اپنے بچوں کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں. ارے بات یہ ہے اپنے بچوں کو ہم قرآن کی تعلیم بھی دینا نہیں چاہتے ہیں. مجبوری میں جو محلے میں چلتا ہے مدرسہ اسی میں بچہ جائے گا, جتنی تعلیم ہو سکے 15-20 میں آدھے گھنٹے میں اتنی تعلیم دینے کے بعد بچہ ہمارا ہوشیار ہو جائے گا. اللہ اکبر, یہ وہ قرآن پاک ہے میرے بھائیوں, اپنے بچوں تک اس قرآن کی اہمیت کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. یہ وہ واحد کتاب ہے دنیا کی جو آدم سے لے کر کے قیامت تک بلکہ پیغمبر اسلام پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے. بہت سارے احکام تو منسوخ ہو چکے ہیں اور بہت ساری پچھلی شریعتوں کی باتیں بھی اس کے اندر ہے اور قیامت تک کے سارے معاملات سارے احکام اسی قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اللہ اکبر, رسول کریم نے صحابہ کرام کو اسی قرآن کی تعلیم دی تھی. اسی قرآن کی تعلیم دینے کے بعد وہ صحابہ جو بظاہر اونٹوں کے چرواہا تھے, اونٹوں کو چرانے والے تھے, وہ اپنے دور میں بڑے بڑے ججز بن گئے, بڑے بڑے مربی بن گئے, دنیا کو فتح کر لیا, دنیا کو زیر لگی کر لیا, دنیا کو فتح کر لیا اور افریقہ تک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج جہاں تک پہنچ گئی. یہ لوگ کیا پڑھے تھے؟ یہ لوگ صرف قرآن پاک کی تعلیم لیے تھے. شرط اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہوگا, ہم قرآن پاک پڑھیں گے بھی, سمجھیں گے بھی اور سمجھائیں گے بھی اور نسل نو تک پہنچائیں گے بھی. آج ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کر کے غافل ہو کر کے بیٹھ چکے ہیں. میرے بھائیوں, ایک تلخ حقیقت ہے, کسی ایک گھر کی بات نہیں ہے, شاید ہمارے گھر کی بھی بات ہو. افسوس, معاشرہ آسانی کے ساتھ بربادی کے دہانے کی طرف جا رہا ہے. میرے بھائیوں, ہم نے موبائل دے دیا, ہم اسے لے نہیں سکتے, ہماری یہ حیثیت نہیں رہ گئی, ہماری یہ جرات نہیں رہ گئی. لیکن ہاں, ہمارے اندر یہ قابلیت ضرور ہے, ہم اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کر کے اس موبائل کے اندر کیا کیا اسلامی چیزیں ہیں وہ دکھا سکتے ہیں. میرے بیٹے سنو سنو, آج کوچنگ کے نام پر تم لاکھ روپے کی فیس مانگ رہے ہو, موٹیویٹر کو جو موٹیویٹنگ کر رہے ہیں ان کو سننے کے لیے تم فیس دینے کو تیار ہو. میرے بچے, اس کے اندر یوٹیوب پر ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو سلیبس تم پیسہ دے کر پڑھنا چاہتے ہو, وہ سلیبس یوٹیوب سے تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو. میرے بچے, قرآن پاک اس کے اندر موجود ہے اور جس قرآن کا ترجمہ تم چاہتے ہو مسلک اہل سنت کا, وہ ترجمہ بھی اس کے اندر موجود ہے اور وہ تفسیر بھی اس کے اندر موجود ہے. حدیث پاک بخاری مسلم موجود ہے, اسلامی کتابیں اس کے اندر موجود ہے, تاریخ اسلام موجود ہے, سیرت مصطفیٰ موجود ہے. میرے بچے, سارا وقت اپنا کھیل و کود میں نہ صرف کر کے موبائل ہاتھ میں رکھتے ہو, چلاؤ, لیکن وقت نکال کر اسلام اور اسلامیات پر بھی نظر کر لیا کرو. اگر ہم یہ سکھانے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارے بچے تھوڑا وقت دے کر کے ہی کچھ اسلامی چیزوں کو سیکھنا شروع کر دیں گے اور اسلام سے دلچسپی بننا شروع ہو جائے گی. جب جا کر کے بدلاؤ آنا شروع ہو جائے گا. آج ہم اپنے بچوں کے سامنے یا اپنے معاشرے کے سامنے بے بس ہو چکے ہیں. دیکھا دیکھی میں سارا معاشرہ بگڑ چکا ہے. اپنی اولاد کو ہم نہیں روک سکتے. کیوں؟ کیونکہ اگر بدل کی اولاد اسی راستے پر چل رہی ہے, سب کے ہاتھ میں ایسی چیزیں ہیں, اپنی اولاد کو ہم نہیں روک سکتے. میرے بھائیوں, یاد رکھنا, جب تک جو قوم قربانی نہیں دیتی ہے وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے, ضدی آدمی ہی اتحاد رستا ہے. جب ہمارے رات کے اندر ضد پیدا ہو جائے گی, ہمیں کچھ کر گزرنے کی جرات پیدا ہو جائے گی, ہم اپنے بچوں کو, اپنے معاشرے کو سمجھانا شروع کریں گے. اور ہاں, یاد رکھیں, اللہ نے اگر ہمیں اور آپ کو بہترین امت کہا ہے تو اس لیے نہیں کہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے بہترین امت ہے. اللہ نے جہاں پر بہترین امت فرمایا ہے وہاں پر اس کی صفت بیان کر دی ہے کہ بہترین امت آپ کیوں ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اے لوگوں, سنو, تم لوگ بہترین امت ہو. کیوں ہو؟ کیونکہ تم لوگ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو, اس لیے بہترین امت ہو. جس دن یہ جذبہ ہمارے اندر سے فنا ہو جائے گا ہم بہترین امت نہیں رہ جائیں گے. اور یاد رکھیں, وہ جذبہ فنا ہو چکا ہے, ہم اچھی باتوں کا حکم دینے کے تیار نہیں ہے اور برائیوں سے روکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو یاد
آج اسی لیے ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے چلے جا رہے ہیں. شاعر کہتا ہے وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو گئے اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن. ہم نے بہت کچھ چھوڑا ہے, ہم نے اسلاف سے پائی ہوئی میراث گنوا دی ہے اور آج دنیا کے نقشے قدم پر چلنا شروع کر دیے ہیں. یورپین کلچر کو ہم نے فالو کر لیا ہے. ہمیں لگتا ہے یہ مادی دنیا ترقی کی راہ پر گامزن ہے, اسی کے پیچھے پیچھے چلنے میں کامیابی ہے. میرے بھائیوں, جب آؤ گے اسٹڈی پر, جب آؤ گے مطالعے پر, جب آؤ گے تحقیق پر, جب آؤ گے ریسرچ پر, تو ایک دن اس جگہ پر پہنچو گے دنیا جس سائنس کا نام ترقی دے رہی ہے وہ سائنس رسول اللہ کے دروازے پر گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آتے ہیں. جس سائنس کا نام ترقی ہے وہ سائنس رسول پاک کی بارگاہ میں گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جنہوں نے یہ ریسرچ کیا ہے وہ پا لیا ہے. ہمیں کیوں نہیں ملتا ہے؟ کیونکہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں, ہم نے سوچا ہی نہیں ہے, ادھر جانا ہی نہیں ہے, ادھر خیال بھی نہیں کرنا ہے, خود بھی نہیں جانا ہے, نہ اپنے بچوں کو لے کر کے جانا ہے. اس لیے میرے بھائیو, وقت رہتے اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کریں, بدلاؤ پیدا کریں. یہ ماہ ربیع النور شریف آتا ہے, آئے گا, چلا جائے گا. ہر سال ہم ایسے ہی جھنڈیاں لائٹیں لگا کر ذکر میلاد مصطفیٰ بنا کر ختم کر دیں گے, لیکن اپنے اندر تبدیلی نہیں پیدا کریں گے. میرے بھائیوں, سنگٹھن پیدا کیجئے, اتحاد پیدا کیجئے, جو روٹھے ہیں انہیں منانے کی کوشش کیجئے, کیونکہ یہ بہت بڑا کار ثواب ہے. اپنے بھائیوں کو ملا کر چلنا, ان کو ساتھ لے کر کے چلنا, ان کی صحیح رہنمائی کرنا, جو بھٹکے ہوئے ہیں انہیں راہ راست پہ لانا, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور کرنا, جو کمزور ہے ان کو ان کی مدد کرنا, یہ ہمارا ہی فریضہ ہے. جب جا کر کے ایک بہترین معاشرہ تشکیل ہو پائے گا اور ہم صحیح معنوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح امتی قرار پائیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اور محبوب امتی بن جائے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دینا ہوگا. دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم کو اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.